جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے، یعنی 25ویں رمضان ہے۔ عنقریب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس بابرکت اور مغفرت و بخشش کے مہینے کے چند ہی لمحے ہمارے درمیان ہیں، اس لیے ان لمحات کو، ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک بات کا ازالہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے کا، اس کو بہت سارے لوگ الوداع جمعہ کے نام سے جانتے ہیں، کہتے ہیں۔ اگر آپ اس ورڈ اور اس لفظ کی تحقیق کریں گے الوداع جمعہ، تو نہ آپ کا اس کا ذکر قرآن میں پائیں گے، نہ احادیث پاک میں پائیں گے، اور ہمارے اسلاف میں بھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، نہ ائمہ کرام نے ان الفاظ کو کہا ہے الوداع جمعہ۔ اس لیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس سے بچنا چاہیے، اسے نہیں کہنا چاہیے کہ الوداع جمعہ ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیے ہیں اور اس کے خطبے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ الوداع جمعہ کے دن نئے لباس پہنتے ہیں، ایک خاص اہتمام کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ یہ عام جمعہ کی طرح یہ جمعہ ہے، جس طرح شوال کا آخری جمعہ ہوتا ہے اور مہینے کے آخری جمعہ ہوتا ہے، یہ بھی رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس کی کوئی خصوصیت فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، ایک مومن کو اگر کچھ کرنا ہے، ایک مسلمان کو اگر کچھ کرنا ہے، تو اسے یہ فکر کرنی چاہیے کہ اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، برکتوں کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، مغفرت کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، چند لمحے، چند ایام بچ گئے ہیں۔ اب ہم نے ایک مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اور چند لمحے ہیں، چند ایام ہیں۔ ان ایام کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان ایام کو ہم کیسے گزاریں۔ یہ چند لمحے بچ گئے ہیں، اس لیے کہ کیا پتہ پھر آئندہ سال یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ کتنے ایسے ہم جانتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے کے، ہمارے دوست احباب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کے مہینے میں تھے، ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں منائے، لیکن اس سال وہ نہیں ہے، اس سال وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو کیا پتہ آئندہ سال یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے جو بھی لمحے بچ گئے ہیں، جو بھی چند ایام بچ گئے ہیں، ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری ایام کو کیسے گزارتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوتی تھی جب رمضان کے آخری ایام چلتے تھے؟ آئیے ہم جانتے ہیں احادیث پاک سے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نمونہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو جیسے نبی نے رمضان کے ایام گزارے ہیں، ویسے ہمیں بھی گزارنا ہے۔ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تب تو نبی کی اتباع ہوگا۔ آئیے حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2024 ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور پوری رات عبادت کرتے، احیا لیلہ، اور اس رات کو زندہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے احادیث کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں احیا لیلہ، راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس آخری عشرے کے جو راتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں
क़याम का अहतमाम करते, तिलावत कुरान का अहतमाम करते, दुआओं का अहतमाम करते, ज़िक्र अस्कार का अहतमाम करते। इसीलिए कहा अहया अलैलहू कि इस रात को ज़िंदा क्या करते थे, यानी इन रातों की असली यही है कि इन रातों में खूब इबादत की जाए। और एक बात इस हदीस में कही गई, वशद्दमी इज़रहू, अल्लाह के नबी अपने कमर को कस लेते थे। क्या मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अय्याम से ज़्यादा इन अय्याम में इबादत के लिए तैयार हो जाते, एक्टिव हो जाते थे और खूब मेहनत क्या करते थे। और एक माना अहले इल्म ये कहते हैं वशद्दमी इज़रहू कि आप इन अय्याम में, इन आखिरी 10 दिनों में अपनी बीवियों से अलग हो जाते थे। हालांकि रमज़ान के अय्याम में रातों में अपनी बीवियों से मिलना जायज़ है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आखिरी 10 रातों में अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से अलग हो जाते थे। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अय्याम कैसे गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब मेहनत करते थे इबादत में, नेकियों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब इबादत करते थे और हम उसी नबी को मानते हैं। अब देखें कि हमारी क्या हालत है कि इन अय्याम में हम कितनी मेहनत करते हैं। क्या हम लंबे लंबे क़याम करते हैं, क्या हम दुआएं करते हैं, क्या हम तिलावत करते हैं, क्या हम नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, क्या हम और नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे अंदर क्या वो शौक़ है, हमारे अंदर क्या वो जज्बा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमज़ान के अय्याम में इस तरह गुजारा करते थे। इसी तरह इस आखिरी अशरे की इतनी अहमियत क्यों है। रमज़ान के जो ये 10 दिन हैं, 10 रातें हैं, बड़ी अहमियत है। आखिर क्यों इतनी अहमियत क्यों है? तो याद रखिए, क्योंकि इस अशरे में एक रात ऐसी आती है जिसकी बड़ी फजीलत और बड़ा मकाम है। आप उस रात की वैल्यू इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात के नाम पर मुकम्मल एक सूरत नाजिल फरमाया। उस सूरत का नाम क्या है? सूरतुल क़द्र। सूरतुल क़द्र अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। ए नबी आप क्या जाने लैलतुल क़द्र का मकाम क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र, ये शब-ए क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। आप इस वर्ड पर गौर कीजिए, अल्लाह ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहा खैर, खैर का लफ्ज़। ये नहीं कहा कि इस रात की इबादत 1000 महीनों के बराबर है, ये नहीं कहा 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों की कैलकुलेटर करेंगे तो 83 साल और कुछ महीने होते हैं। आज इंसान उतनी लंबी उम्र भी नहीं मिलता है इंसान को। 83 साल तक इंसान जिंदा भी नहीं रहता है। तो एक रात की इबादत इतनी है, 83 साल या कुछ महीने। अल्लाह अकबर। इसीलिए हमें और आपको इन रातों को तलाश करना है, खूब मेहनत करनी है ताकि ये रात हमें मिल जाए। और अल्लाह फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते नाजिल होते हैं, वर्रूह, और रूह, कौन सी रूह? रूह ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम है रूह। इसी तरह कुरान में दूसरी जगह कहा रूहुल अमीन। तो रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक नाम रूह है। कुछ लोग इस आयत से बहुत गलत इस्तेदलाल करते हैं। शब बारात के मौके पर इस आयत को पढ़ करके कहते हैं देखो रूह नाजिल हो रही है, रूह नाजिल हो रही है। हरगिज़ नहीं, यहाँ रूह से मुराद फरिश्ते हैं। किताबों को छानिए, मुफस्सिरीन की किताबों को पढ़िए, तब मालूम होगा। तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और फरिश्तों के जो सरदार हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन मुबारक रातों में नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म को लेकर नाजिल होते हैं। मेरे भाइयों, लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहा? कभी आपने गौर किया? क़द्र का एक माना होता है वैल्यू, मकाम, मर्तबा। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं कि लोग फ़लाँ की बड़ी कदर करते हैं या फ़लाँ की कोई कदर नहीं है, कोई मकाम नहीं है।
तो कद्र का एक माना होता मकाम। चूँकि लैलतुल क़द्र ये बड़ी मर्तबत और बड़े मकाम वाली रात है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा लैलतुल क़द्र। और कद्र का एक माना तंग के हैं, टाइट। जैसे कोई चीज़ तंग पड़ जाती है तो अरबी में वहाँ कद्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये रात, इतने फरिश्ते इस रात में नाजिल होते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, ज़मीन तंग पड़ जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा इस रात को लैलतुल क़द्र। अलग़र्ज़ कहने का मतलब यह है कि लैलतुल क़द्र, शब क़द्र की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। इन रातों में हमें उठकर जागकर इबादत करनी चाहिए। और वो कौन सी रात है? इन 10 रातों में वो मकाम वाली रात, वो मर्तबत वाली रात, वो फजीलत वाली रात कौन सी रात है? तो इस सिलसिले में कई एक अहादीस हैं, इस सिलसिले में कई एक अहादीस है। इन सारी अहादीस को जमा करने के बाद अहले इल्म लिखते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, फब्तगूहा फिल अश्रिल अवाखिर वब्तगूहा फी कुल्ली वित्रिन, कि उस रात को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो और आखिरी अशरे में उन ताक रातों में तलाश करो। जब अल्लाह के नबी ने कह दी ये बात कि ताक रातों में उन रातों को तलाश करो, ताक रात 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, जब अल्लाह के नबी ने ये बात फरमा दिए तो फिर एक रात को अपनी तरफ से ख़ास नहीं करना चाहिए कि हम 27 को इबादत करें या 29 को इबादत करें या 21 को इबादत करें। नहीं, जब अल्लाह की हदीस मौजूद, अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, फी कुल्ली वित्र, हर ताक रात में तलाश करो, तो हर ताक रात में तलाश करनी है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो ताक रात है और जो मकाम वाली रात है, फजीलत वाली रात है, वो ट्रांसफ़र होती रहती है। कभी 21वीं रात होती है, कभी 23वीं में वो फजीलत वाली रात होती है, तो कभी 27वीं में वो फजीलत वाली रात होती है, तो कभी 29वीं में वो फजीलत वाली रात होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात को ख़ास नहीं किया, कहा कि इन 5 रातों में जागो और इबादत किया करो। और जो ख़ास रात नहीं बताई गई उसमें हम सब के लिए भलाई है, उसमें हम सब के लिए भलाई है। अगर अल्लाह के नबी बता देते कि एक रात ख़ास कर देते कि 21वीं ही को वो रात है या 25वीं ही को वो रात है या 27वीं ही को वो रात है, तो मेरे भाइयों एक ही रात हम जागते और रात हम सोए रहते। लेकिन ये अल्लाह अकबर, हम पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि वो नहीं बताया गया, ताकि उस रात के लिए और 4 रातें एक्स्ट्रा हम जागते हैं, इबादतें करते हैं, तो हमारी नेकियों में इजाफा होता है। अलग़र्ज़ कहने का मतलब ये है कि लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, ये बड़ी अहमियत वाली रात है। इस रात का हक़ अदा करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ईशा की नमाज़ पढ़कर सो जाते हैं और लास्ट में आके तरावी पढ़ते हैं। ये रात, इस रात का हक़ अदा नहीं होता है। ऐसे कैसे होता है? नबी की हदीस बताती है, अहया लैलहू, पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत क्या करते थे? पूरी रात। हमारे और आपकी हाल ये है, ईशा के खाने के बाद सैर व तफरीह में लग जाते हैं, मोबाइलों में लग जाते हैं, ख़रीदो फरोख्त में लग जाते हैं, मार्केटिंग और शॉपिंग में लग जाते हैं। ये इस रात का हक़ नहीं है। इस रात का हक़ अदा करना चाहते हैं तो पूरी रात आपको इबादत करनी पड़ेगी, पूरी रात इबादत करनी पड़ेगी। चाहे आप नमाज़ें पढ़ें, चाहे तिलावत करें, चाहे तर्जमा के साथ कुरान पढ़ें, चाहे दुआ करें, इबादत आप उस रात करें, तब उस रात का हक़ अदा होगा, वरना उस रात का हक़ अदा नहीं होगा। तो हमें और आपको चाहिए कि इस आखिरी अशरे में, और अब समझिए 2 ही ताक रात बच गई है, हमें और आपको पूरी कोशिश करनी है ताकि वो फजीलत वाली रात मिल जाए और वो फजीलत हमें मिल जाए जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया। इसी तरीके से अब चंद अय्याम बच गए हैं, चंद लम्हे बच गए हैं, हम क्या करें? एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? वो याद रखिए, एक मुसलमान वो अमल करे जिससे अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह कौन से अमल से खुश होता है? अल्लाह किस अमल से खुश होता है? अहादीस में इसका पूरी तफसील है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश जिस अमल से होता है वो फ़राइज़ के पाबंद है, फ़राइज़ की अदायगी है। फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ रोज़े, फ़र्ज़ ज़कात, इनका अहतमाम करना है ये चंद दिनों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते
फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह से करीब जिस चीज़ के ज़रिए से होता है वो फ़राइज़ है, वो फ़राइज़ है। इसलिए ये चंद लम्हे जो बच गए हैं, हमें और आपको ये अहद और इरादा करना है कि कोई फ़र्ज़ नमाज हमसे छूटे ना, हम जमात के साथ अदा करें, क्योंकि अल्लाह इससे खुश होता है। और यही नहीं, आगे फरमाते हैं वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है एक बंदा फ़राइज़ के साथ साथ जब वो नफली इबादतें को अंजाम देता है, नफली रोज़े रखता है, नफली नमाज़ें पढ़ता है, नफली सदका व खैरात करता है, फरमाते हैं हत्ता उहिब्बहू, अल्लाह फरमाता है मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है, मैं उसे चाहने लगता हूँ। और जब अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है तो रब फरमाता है कि मैं उस बंदे का कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उस बंदे की आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उस बंदे का हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उस बंदे का पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका कि हाथ बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ? उसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बुराई से महफूज रखता है। अल्लाह ताला उसके कान को बुरी चीज़ों को सुनने से बचाता है, आँख को बुरी चीज़ देखने से बचाता है, हाथ को बुरी चीज़ पकड़ने से बचाता है, पैर को बुराई की तरफ चलने से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। देखता वो है जो अल्लाह को पसंद है, सुनता वो बंदा वो है जो अल्लाह को पसंद है, वो पकड़ता वो है जो अल्लाह को पसंद है, वो चलता उधर है जिधर अल्लाह को पसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि फ़राइज़ के साथ जो नफली इबादतों का इहतिमाम करता है तो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह ताला उसे चाहने लगता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। और हदीस के आखिर में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब वो बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है, वो मुस्तजाबु दावत हो जाता है, वो जो भी दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारी दुआएं मकबूल हो, हमारी दुआएं रंग लाए, तो फ़राइज़ का एहतमाम कीजिए और उसके साथ साथ नफली इबादतों का भी एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक दे। इसी तरह मेरे भाइयों, इस आखिरी अशरे में चंद लम्हे हैं, चंद दिन हैं, चंद रातें हैं, हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं का एहतमाम करना चाहिए, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए हमें खुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और ख़ासकर ताक़ रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है, अल्लाह के रसूल अगर हमें पता चल जाए कि वो फजीलत वाली रात कौन सी है तो हम क्या पढ़ें? ये नहीं कहा कि हम क्या करें, कहा हम क्या पढ़ें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दुआ है कि उस दुआ का खुसूसी तौर पर एहतमाम क्या करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ का मतलब क्या है? इस दुआ में मांगा क्या जा रहा है? इस दुआ में कहा क्या जा रहा है? इस दुआ का मीनिंग क्या है? कहा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, तू माफ़ करने वाला है, तू हमें भी माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। इस दुआ में ये नहीं मांगा गया अल्लाह तू हमें मालदार बना दे, इस दुआ में ये नहीं मांगा गया अल्लाह तू हमें जन्नत दे दे, इस दुआ में ये नहीं मांगा गया कि हमें तू जहन्नम से निजात दे दे, बल्कि क्या मांगा गया? इस दुआ में मांगी गई कि तू अल्लाह माफ़ करने वाला, हमें माफ़ कर दे। इस दुआ से सबक मिलता है हम सबको कि एक दूसरे को माफ़ कर देना यह अल्लाह को कितना पसंद है, कितना पसंद है कि खुसूसन इस दुआ का एहतमाम करने के लिए कहा गया। इसलिए हम सब अपने दिलों को झांक कर देखें, हमारे दिलों में किसी के खिलाफ कोई नफ़रत तो नहीं है, हमारे दिलों में किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी तो नहीं है, हमारे दिलों में किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ व अदावत नहीं है। अगर है तो ये दुआ हमें तालीम देती है कि पहले अपने माफ़ करो, उसे माफ़ कर दो, इसलिए कि अल्लाह को माफ़ी बहुत पसंद है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इस दुआ में यही चीज़ मांगी गई है। लिहाजा हम देखें
ہیں ہم سے کوئی ناراض ہے یا ہم سے کوئی نفرت کرتے ہیں ان کو معافی کریں، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آئیے آخر میں ہم جانتے چلیں، اب چونکہ چند ہی دن بچ گئے ہیں اور شوال کا چاند نظر آنے والا ہے، عید کے ایام آنے والے ہیں، تو شریعت نے عید کے تعلق سے کیا احکامات، کیا باتیں بتائی ہیں، ایک چند باتیں رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے کہ نماز عید سے پہلے فطرہ ہر مسلمان کو ادا کر دینا ہے۔ اگر کوئی نماز عید کے بعد فطرہ ادا کرتا ہے تو وہ فطرہ عام صدقہ میں چلا جائے گا۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرتا ہے وہ مقبول ہے، اور جو نماز عید کے بعد فطرہ ادا کرتا ہے وہ عام صدقہ ہے، وہ بھی مقبول ہے لیکن وہ عام صدقہ ہے، وہ فطرہ نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز عید سے پہلے ہم فطرانہ ادا کر دیں۔ اسی طریقے سے آداب عید، بہت سارے آداب ہیں، ایک چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر نماز عید تک تکبیرات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، اس سے رب کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن اگر میسر ہو تو عمدہ لباس، نیا لباس پہننا ہے اور خوشبو لگانا ہے، اور اسی طرح عید کی نماز کے لیے آئیں تو غسل کر کے آئیں، یہ مسنون ہے اور آداب عید میں سے ایک آداب ہے۔ اسی طریقے سے جب عیدگاہ جائیں یا نماز عید کے لیے آئیں تو طاق عدد کھجوریں کھا کر جائیں، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کھجوریں کھا لیتے تھے۔ تو طاق عدد یعنی بجوڑ 2، 1، 3، 5، 7 اس طریقے سے کھجوریں کھا کر عیدگاہ جانا، نماز عید کے لیے جانا، یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہے یا جو ایام بچ گئے ہیں اللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو تو قبول فرما، ہمارے روزوں کو تو قبول فرما، ہماری تلاوت کو تو قبول فرما، ہماری تلاوت کو تو قبول فرما، ہماری تراویح کی نماز کو تو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو تو قبول فرما۔ اور یا اللہ اس مبارک گھڑی میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس ملک کو، اس ملت کو، مسلمانوں کو، بالخصوص اللہ فلسطینی مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ فلسطین جو مقدس زمین ہے، پیغمبروں کی زمین ہے، اللہ مسجد اقصی ہے، اس مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ وہ معصوم بچے، اللہ ان معصوم بچوں کے کیا قصور ہے، اللہ ان معصوم بچوں کے کیا قصور ہے، اللہ تو انہیں مغفرت فرما، رحم فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اس اعلان